دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہلو، ہاں ہلو ہاں بولیے سر۔ جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں ہلو ہاں جی بولیے۔ میں انسان علی بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا بولیے۔ جی آپ نے جو ہے کہا ہے کہ درود اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بدعت ہے، ایسا؟ ہاں بالکل بدعت ہے۔ اچھا کیسے حضرت؟ مطلب اس پہ انتظام کرنا اور ثواب کی نیت سے کرنا یہ بدعت ہے، جی ٹھیک ہے۔ ویسے درود شریف تو ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، اس کا ثواب تو بہرحال ملے گا۔ البتہ اور اذان کے پہلے یہ اگر پڑھے تو اذان اس کا سے ثواب پہلے نہیں اگر ملے گا؟ کوئی پڑھے ہاں نہیں ملے، کیونکہ اگر آپ دیکھو گے ہاں پہلے دور میں، صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں، ہاں حالانکہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ تو صحابہ کرام تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں وہ تو بہت ساری ہاں۔ چیزیں ہیں ایسا جو ان کے دور میں نہیں ہوا، آج کے دور میں ایجاد ہوا۔ کون سی چیز دین میں؟ بہت صحیح ہے، دین، بہت ہم ساری دین چیزیں کی بات کر رہے ہیں۔ جی دین میں کون سی چیز ہے جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا اب ہوا ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے ہاں؟ درود شریف، ہاں۔ آپ نے کہا سوتے بیٹھتے اٹھتے درود شریف پڑھو ثواب ہے، ہاں اذان سے پہلے ہاں۔ پڑھنا بدعت کیسے ہو گیا؟ وہی تو میں وہ بول رہا ہوں، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہو کے اس وقت صحابہ کرام بعد کے تبع تابعین سب لوگ پڑھتے تھے، ہاں پڑھتے تھے، ہاں لیکن نماز کا جو ہے نہ اس میں نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نماز سے پہلے درود شریف پڑھو یا اور کوئی چیز، نہ کسی اور کتاب میں کوئی چیز ہے۔ تو اس کے اوپر آپ ٹھیک کے ہے؟ پاس تو ہوگا نا، آپ کے پاس آناف تو کے ہوگا نا نزدیک بھی ثبوت۔ نہیں ہے، ہلو، جی آناف کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے۔ آناف کے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے پاس دلیل ہوگا نا بدعت کا جو حکم لگایا ہے، ہاں بدعت کا جو کیا حکم لگایا ہے، آپ نے جو بدعت کا حکم لگایا ہے ہاں اس کا تو دلیل ہوگا نا آپ کے پاس۔ وہی تو میں بول رہا ہوں کہ بدعت ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کون سی بدعت ہے بھائی؟ دین میں دیکھو، دین میں جو دیکھو بدعت ایسی چیز ہے جو بدعت میں مبتلا شخص کبھی بھی اسے توبے کی توفیق نہیں ہوگی کہ توبہ کر لے وہ، کیونکہ وہ عمل ہی کر رہا ہے ثواب کی نیت سے نا، تو توبہ کیسے کر لے گا؟ جیسے درود شریف پڑھنا آپ نے پہلے ہی مان لیا، اٹھتے بیٹھتے سب کرنا ثواب ہے، لیکن اذان سے پہلے پڑھنا، اذان سے پہلے پڑھنا یہ بدعت ہے۔ دیکھو آپ نے کہا اذان سے التزام کرنا، میں التزام کا لفظ بولا ہوں، ہاں ہاں کہ نماز سے اگر اس سے شریعت سے اگر جوڑ دیا جائے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ دیکھو نہیں، آپ نے کہیں لکھا، نہیں آپ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ آپ رک جائیے، مفتی صاحب 2 منٹ لوں گا۔ یہ بتائیں شریعت، آپ نے کہا شریعت سے کوئی جوڑ دے، تو کس نے جوڑا شریعت سے؟ پھر بھی آپ ہی تو جوڑ رہے ہیں شریعت سے اسے کہ ہر نماز کے شروع میں، آپ نے ہم سے پوچھا آپ کب؟ آپ نے ہم سے، اب دیکھو آپ ہم سے جھوٹ باندھ رہے ہیں سراسر، ہم نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ شریعت سے ہے یہ، یا شریعت سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو سوال جو آپ نے کیا تھا، آپ نے جو سوال کیا تھا کیا تھا کہ نماز سے پہلے آپ نے بدعت بولا، تو میں بولا بدعت اس طور پر کہ آپ اسے التزام کر لیں، لازمی پکڑ لیں کہ ہاں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہے۔ نہیں، لیکن کتنے حکم دیا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہے؟ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہے، نہیں پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ وہ صاحب سوال ہی یہی پوچھا ہم سے
नहीं, वो साहब की छोड़ो हजरत, हमारी आपकी बात हो रही है। अव्वलन तो ये आपको पहले मौक़िफ़ जानना चाहिए था कि मामला क्या है। तो मौक़िफ़ आप बोलेंगे ना हमारा मौक़िफ़ क्या है। बिदअत का सुनो मेरी बात, डायरेक्ट बिदअत का मुतलकन आपने हुक्म लगा दिया मुतलक तौर पे। हुदूद हमने मुतलक तौर पर तो नहीं कहा, हमने मुतलक तौर पर हमने आपकी बात हुई इंतजामन कैद लगाई ना हमने कि इंतजाम अगर कोई करता है अजान से पहले तो ये बिदअत है। ठीक नहीं, इतने टाइम से हमारी बात आपसे हुई। हाँ, और आप जो है अब जाके हुदूद कायम किए हैं बीच में कि भाई देखिए। नहीं, शुरू ही में आपने जैसे पूछा था ना हजरत शेख, जब से आपने पूछा था ना उसी वक्त हमने इंतजाम की कैद लगा दी थी। ठीक है, कि अगर कोई इंतजाम करता है वैसे 1-2 मरतबा अगर देखो पढ़ ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, 1-2 मरतबा पढ़ ले, बाइसे सवाब है। सुनो, अब ये भी आपने इकरार कर लिया, अब क्या आपने ये भी इकरार कर लिया कि 1-2 मरतबा पढ़ ले तो उसमें कोई एतराज नहीं, उल्टा बाइसे सवाब है। इंतजामन की इतलाक मुतलक क्या है, इंतजामन की कैद से क्या मुराद है? इंतजामन की कैद मतलब ये है कि आप अगर नहीं, अगर कोई मुहद्दिस मुफस्सिर सुनो मुहद्दिस मुफस्सिर या मुफ्ती इस पे कैद लगाता है कि अजान देने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है और जरूरी ही है, अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनाह मिल जाएगा, अजान होगी भी नहीं आपकी। तो इसके ऊपर नहीं तो कोई इसके ऊपर बात होती है। अब आपने कहा कि आदमी 1-2 बार पढ़ सकता है, वैसे सवाब जैसे शेष अगर आप गौर करेंगे, अगर मुंबई में रहते हैं आप, देखो अगर मुंबई में रहते हैं जैसे मुंबई में, तो हमने अक्सर बरेली मसलक के मस्जिदों में देखा है कि शुरू में दरूद शरीफ पढ़ते हैं। जी पढ़ते हैं। तो हमने मतलब अब ये इब्तिलाए आम है, मतलब नहीं पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ना भी चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए, जैसे हो वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। हमने ये कहा कि अगर इंतजामन पकड़ लें कि भाई शरीयत में इसका हुक्म है, हालांकि नहीं है, हकीकतन देखा जाए तो शरीयत में इसका हुक्म नहीं कि अजान से पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें। ठीक, दरूद शरीफ जो है पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए, कहीं पे भी पढ़ना चाहिए। आपने सुनिए, आपने फजाइल अमल पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। उसमें एक वाकया सुफियान अस्तूरी का लिखा हुआ है, आपने याद पढ़ा है? हाँ बोलिए। तो वो जो है हज करने के लिए जाती हैं, उनकी एक कोई रहते हैं, उनकी वालिदा जो है वहाँ इंतकाल कर जाती है, उसके बाद उनका पेट बहुत ज्यादा मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाता है। इतने में उन्होंने क्या देखा, इतने में देखा कि जनाब नबी एक कोई बंदा नूरानी शक्ल वाला तशरीफ लाया और उनके पेट के ऊपर हाथ रखा और कुछ पढ़ा तो पेट उनका अपनी जगह पे हो गया। वो जाने लगे तो वो बूढ़ी औरत का जो लड़का था उसने कहा कि हुजूर हमारे लिए कोई ऐसा अमल बता दें जो हमेशा करता रहो। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्होंने कहा कि आप दरूद शरीफ पढ़ा करो हमेशा और इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ठीक, समझ गए? और जब वो जाने लगे तो उन्हें पूछा आप कौन हैं, तो आपने बताया कि हम जो है आपके नबी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अपनी पहचान उन्हें बताई। ठीक, फिर वो हज को गए। सुफियान अस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब वो हज को गए तो वो जब हज तवाफ़े काबा कर रहे थे तो उनकी बगल से मैं चल रहा था और वो यही पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो उनसे मैंने रोक कर पूछा, उनसे हमने रोक कर पूछा कि यहाँ पे आप उनसे रोक के उन्हें और साइड में लेके जब उनका तवाफ खत्म हो गया तब मैंने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उन्होंने पूरी वाकया बताई। ठीक है, ये फजाइल अमाल में भी लिखा हुआ, लेकिन सुफियान अस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे बिदअत का हुक्म नहीं लगाया हजरत। अच्छा, ये फजाइल अमाल आप पढ़िए, उसमें आप है फजाइल अमाल में भी और फजाइल अमाल से पहले रूहुन में। तो जब पढ़े हैं आप तो इस तरह आप जो है जाहिलों वाली बात न किया करें। मैंने इंतजामन देखिए शेख, मैंने इंतजामन की कैद लगाई कि अगर कोई जरूरी समझ ले, नहीं सुफियान अस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े आप हैं या आप उससे ज्यादा तफर्रुद है। ठीक है, सुनो, फजाइल अमाल का जो वाक़या तफर्रुद है। ठीक है,
हेलो क्या करें? मैं वाकया जो आप जैसे फजाइल अमाल को जो वाकया है तफर्रुद है, ठीक? हाँ ठीक, मैंने इल्तिजामन की कैद लगाया। अगर कोई जरूरी समझ ले कि अजान से पहले ही पढ़ना ही है, उसी तरह नहीं है। सुनो मेरी बात भाई, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर पढ़ने पर उन्हें कितना अज्र मिलेगा। मुफ्ती साहब मेरी बात सुन ले पहले, आप 2 मिनट के लिए काम, उन्हें कितना अज्र मिलेगा? अरे अजर का तो आप भाई दरूद शरीफ जो पढ़ेगा उसे अज्र मिलना ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं 10 गुना सवाब काबा में क्या पढ़ा जाता है? मुफ्ती साहब आप मुझे बताएं, जब काबे का तवाफ हो तब वहाँ पे क्या पढ़ा जाता है? वो जो शरीयत हुक्म देती है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यही। तो फिर वो जब फिर वो जो पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, वो जो पढ़ रहे थे फिर उनके ऊपर क्या हुक्म लगाओगे आप? मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर, मैं बोल रहा हूँ शरीयत तो हुक्म दे रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये शरीयत हुक्म दे रही है। वो वाकया देखो, उनके ऊपर हुक्म क्यों नहीं लगाओगे आप? मेरी बात सुनिए, वाकया हुज्जत नहीं है ना ही। सुनो, वाकया हुज्जत है क्या आपके नजदीक? मौलाना जकरिया साहब ने सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, उन्होंने किताब से लिखा है, फजाइले दरूद में देख लीजिए। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, वहाँ किताब का हवाला भी दिया, ठीक? हाँ, हवाला नहीं, रियल जो असली किताब है मैं उसकी भी तहकीक कर चुका हूँ इस वाकये को। मत कहिए वाकया हुज्जत नहीं होता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, न ख्वाब हुज्जत होते हैं, ये वाकया। सुनो, मैं आप मुफ्ती हैं, देवबंदियों के मुफ्ती हैं, यहाँ बम्बई में मैं देख रहा हूँ, बम्बई में जो देख रहा हूँ ना, अक्सर मसाजिद में नमाज से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। हालांकि मुंबई में देखे तो क्या देखे, मैंने आपको काबा शरीफ का हवाला दे दिया, शरीयत हुक्म दे रही है, उसके बावजूद वो दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अभी भी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ मुफ्ती साहब? वाकया कलेजा ठंडा क्यों नहीं ठंडा होगा? वाकया हुज्जत नहीं होता, ये मत कहना। मैं उसका सनद मतन सब साबित कर दूंगा, आपके सही है। कोई वाकया हुज्जत है क्या? वो पूरे सनद के साथ है, इस्लामी के डाल देंगे कि हाँ ये यही शरीयत है। नहीं तो फिर जकरिया साहब उम्मत को गुमराह कर रहे हैं ये सब लिखकर। आप मुझे बताएं, कर रहे हैं आप तो फिर वो फजाइल के मामले है, उस वाकये को कहाँ उन्होंने जिक्र किया है? शेख मेरी बात सुनिए, वो जो वाकया है भी है, देखो सनद के साथ और किताबों में सनद के साथ लिखा है, और जकरिया साहब ने मतन लिखा है। अब आप हमारी बात वाला हथकंडा अपना के जकरिया साहब को अदालत बिल्कुल नहीं मुलजिम बना के अदालत में मत मेरी तावील करते करते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। वो वाकया शेख ने कहाँ जिक्र किया है? किस फजाइल में? फजाइल दरूद शरीफ में ना, फजाइले दरूद शरीफ में लिखा है ये वाकया। और ये वाकया सनद के साथ और भी उनसे पहले मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है। मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है। सनद के जो रावी है ना, सुनो, सनद के जो रावी है मिनाजुल ये मिजानुल इत्दाल में सनद के रावी हैं, और मुहद्दिसीन ने रावियों को सिक्का कहा है। मैं भी मिजानुल इत्दाल में देख लिया हूँ कि वो एकदम सिक्का है। हाँ, ये आप मत सोचिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो ज़ईफ है या वाकया ज़ईफ है या वाकया मंगलत है। मैं तो इस पर तबसरा किया ही नहीं, ठीक? अभी आप कह रहे हो हुज्जत नहीं होता है। वाकया हुज्जत थोड़ी ना है। तो सहाबा के दौर में वाकया हुआ, पेश आया वो वाकया क्या? वो सुफियान सौरी के दौर में वाकया हुआ है। मैंने आजकल के जो है यहाँ गली कूची मोहल्ले के मौलवी थे क्या? उन्होंने तो बिदअत का हुक्म नहीं लगाया। सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के नबी का, उसके बाद सहाबा का। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं भैया, सबे ताबईन का सुफियान सौरी तुमसे छोटे थे क्या इल्म में? अरे वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। उनको बिदअत तो हमारे सुफियान सौरी। बस जहाँ देखो वहाँ बिदअत का, जहाँ देखो वहाँ आदमी साहब की किताब को आप नहीं देख रहे हो, गंगोही का किताब नहीं देख रहे हो, नानुसी का किताब नहीं देख रहे हो, अम्बेडकरी का किताब नहीं देख रहे हो, फजाइल अमाल नहीं कर रहे हो। नहीं, मेरी बात बेवजह जो है बेवजह अपना जुबान बंद रखा करें, और अगर पढ़ लिख कर मुफ्ती बने हैं तो अच्छा है, और नहीं मुफ्ती बने हैं तो कोई बात नहीं। बेवजह नहीं, जामिया अजहर कहीं से भी मत लगाया है। सुनिए, अभी जामिया अजहर से चलिए वापस हो गया। जामिया आप कहाँ से वापस आए वो हम नहीं जानते, लेकिन आप
तहकीक कर ले और पढ़ ले पहले तलब सालिहीन को पढ़ ले میں نے اور امام محدثین کو پڑھ لے, اس کے بعد مطلقاً نہیں کرنٹ لے کے نکلے غیر مقلدوں کی طرف. ٹھیک ہے, چلیے.